لیکن ایک دن نہ علی کو زخم شمشیر کا لگا تھا، نہ اتنا گہرا زخم تھا، نہ سر علی شکافتہ تھا، لیکن زہرا کا دل ٹوٹ گیا، صدیقہ کا دل ٹوٹ گیا، روئی، بہت شدت کے ساتھ روئی، اور اتنی ناتوان ہوئی کہ مسجد سے گھر آنے میں بہت وقت لگ گیا، جبکہ مسجد اور گھر کا دروازہ ساتھ ساتھ تھا، 2 قدم پہ تھا، بہت وقت لگ گیا۔ مسجد سے نکلی، زمین پہ بیٹھ گئی، ساتھ موجود خواتین نے سہارا دے کے اٹھایا، اٹھ کے 1 قدم چلی، پھر زمین پہ بیٹھ گئی۔ پھر ام ایمن نے پوچھا، بی بی چل کیوں نہیں رہی آپ؟ فرماتی ہیں ام ایمن، میرے جسم سے طاقت ختم ہو گئی ہے، میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی۔ یہ کون سا زخم تھا؟ یہ کس نے لگایا تھا؟ اور پھر جب یہ مختصر سا فاصلہ بہت طویل وقت میں طے کر کے جب گھر پہنچی، پس در علی علیہ السلام منتظر تھے گھر کے اندر، جب سیدہ گھر میں تشریف لے گئیں، صحن میں وہیں پر ریت پر بیٹھ گئیں اور فریاد کی، اور اس فریاد میں ایک جملہ کہا جس نے علی کو رلا دیا۔ جناب سیدہ نے جب گریہ کیا اور جملہ فرمایا، وہ جملہ کیا تھا؟ اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش میں موجود نہ ہوتی، آج کا دن نہ دیکھتی۔ امیر المومنین نے پوچھا، زہرا ایسے لگتا ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا؟ فرماتی ہیں علی، اے کاش ایسا ہی ہوتا، اتنا ہی ہوتا، مجھے کہہ دیا جاتا کہ آپ کو حق نہیں ملے گا، اس سے مجھے کوئی اثر نہ پڑتا، لیکن علی جو وار مجھ پہ ہوا ہے اس نے میرا دل توڑ دیا ہے، اس نے میری طاقت ختم کر دی ہے۔ وہ کیا کیا انہوں نے؟ کہا مجھے جھٹلایا ہے، مجھے جھٹلایا ہے، مجھے کہا گواہ لے کر آؤ۔ علی مجھے جھٹلا کے مجھے ناتوان کر دیا ہے، میری طاقت ختم ہو گئی۔ عزیز من، یہ وہ زخم ہیں۔ اور پھر ایک دن علی ہیں، اب سیدہ کے بغیر ہیں، کوفہ کے اندر بے وفاؤں کے شہر میں، بے وفاؤں کے شہر میں حسرت اطاعت لے کر، اور بہت ساری حسرتیں دل کے اندر، ایسی حسرت کہ دل کی بات کس کو کہوں، کوئی موجود بھی نہیں ہے۔ کبھی قبرستان میں جا کر کسی خلوت میں کچھ فرما دیتے، اور کبھی راویوں کے بقول کسی کنویں میں منہ کر کے اپنے دل کا راز وہاں پر بیان فرما دیتے، اور پھر آرزو کرتے کہ خدایا مجھے اٹھا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، میں ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا، میں ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا۔ اور پھر وہ بلاوا آ گیا، وہ شب آ پہنچی، پھر 19 کی شب آ گئی جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے فرمائی ہوئی تھی۔ وہ شقی اشقل اشقیاء وہ آیا جس نے شمشیر زہر میں بجھا کر حالت سجدہ میں علی مظلوم کے سر پہ ماری، وار کیا، شمشیر کا لگنا تھا، بے ساختہ علی کے منہ سے یہی جملہ لکھنا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ شب ایسی تھی، اس شب میں آثار تھے۔ امیر المومنین نے افطار کیا، صرف پانی کے ساتھ افطار کیا، پانی کے ساتھ افطار کر کے
बेटी के घर से आए, वो आसार नुमाया थे। हर दिन कोई साथ आता था, उस दिन अकेले तशरीफ लाए। शब से गोया तैयारियां हैं अली की अपने परवरदिगार की बारगाह में जाने के लिए, और उसी एहतमाम के साथ आए। मस्जिद में आके देखा लोग सो रहे हैं, सहरी का वक्त है, लोग सो रहे हैं, इबादत का वक्त है, लेकिन जागे हुए नहीं हैं। सबको एक एक करके बेदार किया, और ये मलऊन इब्न मुलजम भी सोया हुआ था, उल्टा सोया हुआ था, इसको भी हिलाया और इसको बेदार किया। अपने कातिल को जगाया, बेदार किया, उठाया, उठ, सहर का वक्त है, अल्लाह का नाम ले, बंदगी खुदा कर। और फिर उसके बाद खुद मशगूल हुए। अजीजान, ये ज़रबत लगी और खबर किस तरह से कूफा में फैली। अहले कूफा को कैसे मालूम हुआ? अहले कूफा को किसी ने जाके बताया नहीं कि अमीरुल मोमिनीन जख्मी हो गए हैं, बल्कि कूफा के अंदर वो यतीम और बेवाएं और नादार और बीमार और फुकरा और मोहताजीन, जो हर शब एक नाशनाख्ता मोहसिन, एक नाशनाख्ता मेहमान के इंतजार में रहते थे। वो मेहमान जो अपने साथ इन सब नादारों के लिए, फकीरों के लिए अपने साथ गजा लाता था, दूध लाता, खुरमा लाता, बाजों के घर में आकर गैर महसूस तौर पर रख के दस्तक दे के चला जाता कि कोई उसको पहचान न सके कौन है। कई दफा उन्होंने कोशिश की कि आने वाले को पहचान तो सकें, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हुए, नहीं मालूम हुआ कौन आता है। रात की तारीकी में ये ज़रूरियात पहुंचा के चला जाता है, और जिनके घरों में कोई नहीं होता, उन बच्चों को खिलाने वाला वहां पर घर के अंदर जाकर उन बच्चों को अपनी आगोश में बिठाकर उन भूखे बच्चों के सर से खाक साफ करके उनके चेहरों पे शफकत और मेहरबानी का हाथ फेरता, उनके सरों पे बोसा देता, उन्हें सीने से लगाता। फिर उसके बाद अपने हाथों से खुरमा उठाकर उनके मुंह में डालता, दूध का कासा उठाकर उन्हें अपनी आगोश में मां की तरह पिलाता, और कई बच्चों को लोरियां दे के सुला के आराम करके लिटा के फिर उठ के दूसरे घर में चला जाता, और वहां से फिर किसी वीराने में चला जाता। उस वीराने में जाता जहां पर कोई नाबीना, नादार, मिस्कीन, जिसको सबने छोड़ दिया है, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है, उसके पास जाता और जाकर पहले उसको सलाम करता, फिर सलाम करके वो मुंतजिर रहता, और वो पहचान जाता कि मेरा दोस्त आ रहा है। कहां से पहचानता? कदमों की आहट से पहचान जाता है। अली के कदमों की आहट से पहचान जाता कि मेरा दोस्त आ रहा है। लेकिन अजीजान, 19 की शब के बाद यतीम देखते रह गए, बेवाएं हालत इंतजार में रहीं, नादार फकीर दर खोल के देखते थे। उस वीराने में बैठा हुआ बीमार, उसको इनको अपने भूख की फिक्र नहीं थी, अपनी खुराक की फिक्र नहीं थी, बस एक फिक्र लगी हुई थी। वो जो हर शब मेहरबान आया करता था, वो क्यों नहीं आया? खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, क्यों नहीं आया? बार बार दर खोलते, बच्चे माँ से पूछते, अपनी माँ से कहते, माँ वो मेहरबान क्यों नहीं आया? कहीं ऐसे तो नहीं कि हमें भूल गया हो, कहीं ऐसे तो नहीं कि हमें फरामोश कर दिया हो। माएँ कहती, ना बेटा, वो मेहरबान ऐसा था, उसके नफस में मेहरबानी ऐसी थी, वो कभी इन यतीमों को भूल नहीं सकता। मुझे खौफ है कुछ हो ना गया हो, कोई हादसा ना हो गया हो। और इसी तरह वो वीराने में बैठा हुआ फकीर
वो नाबीना, वो मरीज जो मुंतजिर था, हर राह गुजर से पूछता था कि लोगों मेरा दोस्त नहीं देखा। एक शख्स रात की तारीकी में कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था, उसे आवाज दे के पूछता है, और रास्ता गुजरने वाले जरा मेरी बात सुन के जाना। जब वो करीब जाता है तो पूछता है, इधर इर्द गिर्द मेरे दोस्त को नहीं देखा? वो कहने लगा, मैंने ताज्जुब से पूछा, तू नाबीना है? मैं जब आया हूं तूने मेरे कदमों की आवाज सुनी, तूने मुझे अपना दोस्त क्यों नहीं समझा? तूने मुझसे ये पूछा मेरे दोस्त को नहीं देखा, तो मैं ही तेरा दोस्त हो सकता हूं। कहने लगा, नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं है। तेरे कदमों की आवाज सुनकर मुझे इतना पता चला कोई इंसान गुजर रहा है, लेकिन मेरा दोस्त जब गुजरता है उसके कदमों की आवाज सुन के लगता है कोई मेहरबान गुजर रहा है, कोई मेहरबान गुजर रहा है, कोई रहमदिल गुजर रहा है, कोई ऐसा गुजर रहा है जिसको अल्लाह ने ऐसा दिल दिया है। जब वो मेरे करीब आता था, उसके बदन की खुशबू से जो मेरा एहसास होता था, तुझे मिलने से वो एहसास नहीं हुआ। मुझे बता तो सही कि वो कौन है। उसने बताया, मैं तो नहीं जानता तेरा दोस्त कौन है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि मुझे इत्तला मिली है कि कल शब किसी शकी ने खलीफा मुस्लिमीन को मस्जिद में ज़रबत से मजरूह कर दिया है। जब उसने पूछा कि शहर में कोई हादसा तो नहीं हुआ, कोई वाकया तो नहीं हुआ, कहा और तो नहीं सुना, बस ये वाकया सुना है कि अमीरुल मोमिनीन को मजरूह कर दिया गया है। बस अमीरुल मोमिनीन का नाम आना था। यतीम घरों से निकले, नादार घरों से निकले, फकीर घरों से निकले। जब ये खबर सुनी और साथ ही उन्होंने सुना कि तबीब ने ये तजवीज़ किया है कि अमीरुल मोमिनीन के सर पे जिस तलवार से ज़रब लगाई गई वो जहर में बुझी हुई थी, जहर का असर बदन मौला में हो गया है। अब फकत दूध से इलाज हो सकता है, अगर हुआ तो दूध असर कर सकता है। जिस दिन अली के हाथों दूध पीने वाले मुंतजिर रहते थे, दूध अली लाएंगे तो ये पिएंगे, आज न जाने कहां से दूध ले आए, दूध के कासे हाथों में पकड़े हुए खुदा जानता है कहां से आज इनको दूध मिल गया, किस कीमत पे दूध मिला, क्या मुआवजा देकर दूध लिया। दूध के कासे लेकर अली के घर के सामने आकर फरियाद करके पुकार के कह रहे हैं कि मेरे हिस्से का दूध मेरे मौला को पिला दो, शायद ये इस मेहरबान को शफा हो जाए। जब यतीम नादार घर के बाहर कोहराम बपा है और घर के अंदर अली की बेटियां हैं, अली की औलाद है, अली के बेटे हैं, अली की बालीन पर हैं, कि एक दफा निदा बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस दिन ज़ैनब कुलसूम अपने बाबा से लिपट कर फरियाद करने लगी और इमाम हसन मुज्तबा दर खोल कर बाहर आए और कूफा के यतीमों और फकीरों को कहा कि अपना दूध वापस ले जाओ, जिस मेहरबान के लिए लाए थे वो अपने अल्लाह से जा मिला, वो अपने रब से जा मिला। ये सुनना था, दूध के कासे हाथ से छूट गए, दूध जमीन पे गिर गया, उन्हीं हाथों से सर पे मातम किया, फरियाद की, हैदर हैदर की फरियाद की। अली दुनिया से रुखसत हो गए। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू या मुनक़लबिन यनक़लिबून। मातम मौला अली, मातम हुसैन।